Hello everyone. Today we are going to learn listening and speaking skill among the four major skills of English language. This lecture is very useful. I can say helpful for undergraduate students, particularly for BA, BSc, BCom, semester first. In today's lecture, I am going to discuss listening skill with you. Hope you will learn and get updated. So my dear students and my dear friends, without wasting our time, let us start our first lecture about listening skill. Here I am going to share this. This is our unit 1 in communicative English semester first, and this is chapter 1. Here we are going to learn listening skill. As we are all aware about that, when we are going to listen properly, then we are going to speak. Before that, I am going to tell you that listening is very important for we people, because after listening we will get all the things properly, and particularly for semester first students, it is very useful for you people to get these skills and get updated, because in coming examinations you have to write down in your exams about these skills, and in your complete portion you will be asked about this. So let us start listening and speaking. Listening skill. Listening, speaking, reading and writing are four major skills in English language. They are closely connected and interact with each other. It is impossible to communicate if we do not listen well, and people seldom well without reading. Listening may be defined as the ability to identify and understand what others are saying. This involves the understanding of speaker's accent or pronunciation, his her grammar and vocabulary, and grasping the meaning of the speaker's speech. So we are going to talk about this listening. तो यहाँ देखेंगे, अगर हमें लिसनिंग के बारे में जानना है तो लिसनिंग ये कहा जाता है कि ये चार बड़े स्किल्स में, इंग्लिश के जो चार स्किल्स हैं, फोर मेजर स्किल्स, दे आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो अमंग दीज फोर स्किल्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस लिसनिंग स्किल. These are closely connected, or we can say interconnected with each other, because when we are going to listen properly, then we are going to speak it properly. Otherwise it is impossible for we to speak. जैसा कहा जाता है, जब तक आप पूरा सुनेंगे नहीं तब तक आपको बोलना नहीं आ जाएगा. तो इसीलिए ये चार बड़े स्किल्स हमें ज़रूरी सीखने हैं, और ये चार के चार स्किल्स इंटरकनेक्टेड हैं आप एक दूसरे से, और इंटरेक्ट विद ईच अदर. ये चारों स्किल्स एक दूसरे से इंटरेक्शन में रहते हैं, और हमारे लिए क्या है ये इम्पॉसिबल, नामुमकिन बन जाता है हमारे लिए कि अगर हम कम्युनिकेट या प्रॉपरली लिसन नहीं करेंगे तो हम प्रॉपरली बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत कमी हो जाएगी कि किस में ना हम बोल पाएंगे ना हम लिख पाएंगे, या पढ़ने में भी हमें बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट इफ़ वी डू नॉट लिसन वेल. तब जाके हमारे लिए बहुत
नामुमकिन वाली बात बन जाती है जब हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे. मे बी इट इज़ माई टॉक टू यू पीपल, मे बी इट इज़ somebody who is going to talk to you, but you have to listen him properly. Then after that it is your turn, you will get it properly. ये माना जाता है लिसनिंग जो है ये एक एबिलिटी है. एबिलिटी क्या है? जब आप प्रॉपरली लिसन करोगे तब जाके इट बिकम्स अ गुड पॉइंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स टॉक. बिकॉज when we are not understanding any other person and it becomes very rude, it becomes very impossible for us to understand him, and so due to that reason it is not possible to us to become good communicators. So to learn listening is very well for us. इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है, अगर हम अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो बेहतर है कि हम प्रॉपरली इस लिसनिंग को सुने. ये लिसनिंग क्या है? ये इन्वॉल्व करता है किसको? दिस इन्वॉल्व द स्पीकर्स एक्सेंट. स्पीकर फॉर एग्जांपल इट इज मी हु इज स्पीकिंग टू यू. मेरा जो एक्सेंट है, मैं किस तरीके से आपके साथ बात कर रहा हूँ, एंड हाउ आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, हाउ इज माई प्रोनाउंसिएशन इन दिस lecture and in the words towards the words, and you are just learning these things. तो it always come after listening. ये सब listening के बाद ही आ जाता है. तभी आपको मेरी ये जो accent है इसके बारे में पता चलेगा. pronunciation में किस तरीके से pronounce करता हूँ हर एक word को आपको पता चलेगा, और ये पता चलेगा मैं ग्रामरली किस तरीके से इसको यूज़ कर रहा हूँ. मेरा वोकेबलरी या खुद आपकी वोकेबलरी जो है बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली किसी स्पीकर की स्पीच अच्छे से नहीं सुनेंगे आप अच्छे से उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तभी हमें कहा जाता है कि आप प्रॉपरली हर एक चीज़ को लिसन करो, उसको सुनो. इफ द स्टूडेंट्स लिसनिंग इज पोर, it will have a negative effect on the fulfillment of others' requirements for speaking, reading and writing. अब अगर किसी बच्चे की ये जो लिसनिंग पावर है कमज़ोर है, वो नहीं सुन पाता अच्छे से, तो उसके लिए उसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. किन लिहाज से नेगेटिव? क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाएंगी. किस में? चाहे उसकी स्पीकिंग करनी हो, रीडिंग करनी हो या राइटिंग करनी हो. तभी हमें कहा गया था कि ये तीन के तीनों इंटरलिंक्ड है, ये इंटरकनेक्टेड है. तीनों किसके साथ इंटरकनेक्टेड है? ये स्पीकिंग के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. तभी जाके हमें ये पता चल रहा है कि जब तक हम लिसनिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो हम इन तीन चीज़ों में कमज़ोर रह सकते हैं. इसीलिए हमें बेटर है वी हैव टू listen properly so that we can get speaking. When we get speaking skill and it comes after that the turn of reading skill, so definitely we will get reading skill, and definitely we will get writing skill, and after that we become good communicators, we become good authors, we become good writers. Therefore listening skill has become an important part of communication process. तो तभी जाके जो ये listening skill है ये एक अहम जुज़ बन जाता है. It becomes an important part in communication process, in our communication, or we can say in our conversation. तो ये हमारे बातचीत करने में, इस communicative process में, उसमें क्या बन जाता है? ये हमारे लिए एक अच्छा सा जुज़ बन जाता है, जिससे हमारी बात अच्छे से चलती रहती है. हमारा कम्युनिकेशन गैप जो बनता है, क्योंकि ड्यू टू दैट वेरी रीज़न जब हमें प्रॉपरली लिसनिंग नहीं होती है, हम प्रॉपरली लिसन नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमें कम्युनिकेशन बैरियर्स बनते हैं. तो वो कम्युनिकेशन बैरियर्स हटाने के लिए हमें क्या करना है? हमें डेफिनेटली हमें ज़रूरी है कि हम ये लिसनिंग स्किल सीखें. In order to become a good communicator, one has to develop listening skill at first. अब एक अच्छा बात करने वाला, good communicator means one who has the ability to talk to other people and motivate them. तो वो हो गया हमारा good communicator. तो अच्छा communicator बनने के लिए हमें क्या है? We have to develop our listening skill. हमें अपनी listening skill को develop करना है. At the initial level, the students should be trained in the sound system of language, so that they may not face any difficulty in pronunciation and understanding of the language. अब हमें इनिशियल स्टेज पे पहले हमें बच्चों को बताना है कि ये जो साउंड सिस्टम क्या है. लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो है उसका बोलने का तरीका जो है
वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनकी जो कनोटेशन है वो किस तरीके से, उस साउंड सिस्टम को हम ये कह सकते हैं हमारे पास अगर अल्फ़ाबेट्स है कितनी, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स 20 शाबाश 26 है, और ये 26 आपको कितने साउंड्स दे रहे हैं, यही आपको 44 साउंड्स दे रहे हैं, और ये 44 में से 20 एंड 24 फोनेटिक जब हम पढ़ते हैं तो वहां से ये आ जाता है ये सिकेलस। तो ये जो साउंड सिस्टम है अल्फ़ाबेट्स का, ये जब हम सीखते हैं उसके बाद क्या हो जाता है किसी लैंग्वेज के बारे में, तब जाके हमें कोई प्रॉब्लम सामने नहीं होती है, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रोनाउंसिएशन अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि जब हमें प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होती है, किसी लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होता है, इसके लिए आपने ये साउंड सिस्टम को आपने फोनेटिक्स का लेक्चर ज़रूर देखना होगा। फोनेटिक्स वहाँ पे पढ़ाया गया है, वहाँ मैंने भी पढ़ाया है, मेरा भी यहाँ पर है, और आप दूसरे सर का भी सुन सकते हो, तो फोनेटिक्स के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। तो ये लैंग्वेज सिस्टम वहाँ पर है, तो तब जाके हम क्या हो जाए, हमें कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी जब हम साउंड सिस्टम सीखेंगे, और किसी भी लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लर्नर्स आर टू बी एनकरेज्ड टू नो व्हाई दे आर लिसनिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर। अब जो सीखने वाले बच्चे हैं, जो लर्नर है, मैं आप सब लोग, तो उन्हें हम एनकरेज कर सकते हैं, दिलासा किस तरीके से, क्योंकि वो दे आर लिसनिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उन्हें क्या चाहिए, वो क्या सुन रहे हैं। इफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग आर ब्रीफड इन एडवांस, the learners can adopt the way to listen to a particular context and can focus their attention efficiently. अब अगर पहले ही लर्नर्स को बताया जाए, अब अगर पहले ही स्टूडेंट्स को इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसकी असल मुद्दा और मकसद क्या होता है, कि अगर हम लिसनिंग सीखेंगे, पहले उन्हें एडवांस में उन्हें बोल दिया जाए कि आपको कितना फ़ायदा मिलेगा अगर आपके ये स्किल्स होंगे, तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे कल को कोई भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को वो अच्छे से एफिशिएंटली उसे ग्रैस्प कर सकते हैं, और वो फोकस भी कर लेंगे अपने। देखो जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये जो स्पीकिंग स्किल है, सबसे पहले हम सुनते हैं। जब हम पैदा हुए तो पहले 4-5 साल में हमने माँ बाप का सुना, क्यों, उसके बाद ही तो हमें बातें करने आ गए। फिर स्कूल भेजा गया तो वहाँ हमें पढ़ाने के लिए वो पढ़ने के लिए भेजा था, तो वहाँ थोड़ा सा पढ़ लिए, उसके बाद धीरे धीरे ये चलता गया। तो इसी तरीके से हमें बच्चों को पहले ही इन चीज़ों के बारे में अवेयर करना है। यहाँ पर हमारा आथर है जेरमी हार्मर यूके के आथर हैं, ये यूके के रहने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम्स के। तो ये आथर जो हैं ये सिर्फ लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं, और ये टीचर्स के एंड टीचिंग एड्स के बारे में लिखते हैं, मतलब हाउ टू टीच, हाउ टू लर्न, हाउ टू टीच स्किल्स, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं तो जिनमें ये इन्हीं चीज़ों को ज़ेर गौर ला के लिखते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को अवेयरनेस दे दें और उन्हें पढ़ाएं। वो क्या कहते हैं ज़रा देखते हैं। Jeremy Harmer says that one of the main reasons for getting students to listen to spoken English is to let them hear different varieties and accents rather than just the voice of their teacher with its own idiosyncrasies। तो जर्मी हार्मर साहब ये कहते हैं कि मेन रीज़न जो है स्टूडेंट्स को अगर आपने पढ़ाना है, उनको सिर्फ अपने ही बारे में जो आप वो खुद पढ़ते, उन्हें डिफरेंट वैरायटीज़ पढ़ा लो। डिफरेंट वैरायटीज में बहुत सारे इंग्लिश वैरायटीज जो है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, कनेडियन है, वो पढ़ा लो। और क्या करो, एक्सेंट्स रादर देन जो प्रोनाउंसिएशन टीचर करते हैं या वो खुद वॉइस, उसके बावजूद टीचर का जो भी रद्द अमल है, तर्ज बयान जो भी टीचर का है, उसके बावजूद भी उन्हें डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ाओ, डिफरेंट वैरायटीज़ को, डिफरेंट या मुख्तलिफ जो अज्जा हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज दे दो। वाई? बिकॉज when they are getting other varieties of English language, then they can able to understand the different languages, then they can understand the different variety of people, because in America they are pronouncing the words in different ways, in Australia they are pronouncing these words in different ways, in Canada, Australia, West Africa, even in America, even in British, their pronunciation is quite different from we people. So Jeremy Harmer says us that you have to teach, you have to
learn different varieties of English language. In today's world, students need to be exposed not only one variety of English, British English for example, but also to varieties such as American English, Australian English, Caribbean English, Indian English और West African English. अब जर्मी हर्मर ये कहते हैं आज के इस दौर में हमें बच्चों को क्या बहुत सारे वैरायटीज़ पढ़ाने हैं, ना कि सिर्फ आप उनको ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाओ बल्कि उनको डिफरेंट पढ़ाओ, उनको अमेरिकन इंग्लिश के बारे में जानकारी दे दो, उन्हें ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के बारे में जानकारी दो, कैरेबियन इंग्लिश है उसके बारे में जानकारी दे दो, हमारा इंडियन इंग्लिश है उसके बारे में जानकारी पूरा दे दो, वेस्ट अफ्रीकन इंग्लिश मीन्स कि हाउ मेनी वैरायटीज आर देयर इन इंग्लिश, यू हैव टू taught them, you have to taught your students all the varieties so that they can understand properly the listening skill. In this way the students can easily focus on the role of individual linguistic units. इस तरीके से बच्चे फोकस करेंगे, आराम से वो फोकस इजीली फोकस्ड रहेंगे किसको, क्योंकि जो भी उनको एक एक लिंग्विस्टिक स्किल जो भी है तो वो उसके ऊपर फोकस. देखो जैसे फोनीम्स है, फोनीम्स हम किस में, हम फोनीम्स पढ़ते हैं फोनेटिक्स में. फोनीम्स मीन्स हर एक वर्ड का अपना अपना साउंड. फॉर एग्जांपल यहाँ दिस है, जो दिस यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस में इसके कितने फोनीम हैं, इसके द ए स, ये 3 फोनीम्स का बना है तो इसमें 4 अल्फाबेट THIS दिस, बट है तो कितने फोनीम्स का, ये 3 फोनीम्स का, मतलब 3 साउंड्स का बना, द ए स 3 साउंड्स का बना है. तो मीन्स ये जो फोनीम सिस्टम है जो फोनेटिक्स में हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी. वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में इसको नॉलेज हो जाएगी. वर्ड्स तो हमें पता है, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है, चाहे प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या ग्रामरली किस तरीके से इन्होंने यूज़ किया है उसकी बात करें तो उसको पूरा इन पे अबूर आ जाएगा. नाउ द स्टूडेंट कैन गेट all these varieties, but after when you taught them different varieties of English, and he also get hold on accent means pronunciation about the वर्ड्स. तो किस तरीके से ये चीज़ें वो हासिल कर सकता है, समझ सकता है इन चीज़ों को. जब ये चीज़ें वो समझ जाएगा, वो फोनीम्स को अंडरस्टैंड करेगा, वर्ड स्ट्रक्चर क्या है अंडरस्टैंड करेगा, ग्रामर क्या है उसको अंडरस्टैंड करेगा, एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन ही विल ईजिली लर्न लिसनिंग स्किल एंड ही विल ईजिली देन अंडरस्टैंड ब्रिटिश और फॉरेन लैंग्वेज पीपल. द सिचुएशन एंड कंटेक्स्ट बैकग्राउंड नॉलेज एंड द टॉपिक. तो तब जाके वो हर एक सिचुएशन को, चाहे कंटेक्स्ट क्या बता रहा है या कोई भी नॉलेज कोई भी टॉपिक हो, उसको वो आराम से अंडरस्टैंड करेगा. While listening to a particular context, our mind has to complete instantly the process of receiving, processing and interacting with the relevant linguistic knowledge. अब जब हम प्रॉपरली या पर्टिकुलर कोई लिसनिंग कर सकते हैं तो देन आवर माइंड हैज़ कंप्लीट इंस्टेंटली तक. तो जब हमने स्टार्ट किया, अब सुन रहे हम, तो हमारे माइंड में एक प्रोसेस, कंटिन्यूसली प्रोसेस, रिसीविंग प्रोसेस, इंटरेक्टिंग क्या हो जाता है ये लिंग्विस्टिक्स के नॉलेज के बारे में. हमारा जो माइंड है मीन्स के माइंड हमारा बॉक्सेस से, जैसे बॉक्सेस टाइप ऐसे होता है, ठीक है. तो हमारा माइंड जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे बॉक्सेस में बना है. तो यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर एक प्रोसेसिंग कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग होती है कंटिन्यूसली. किस तरीके से, जो हमारी लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेजेस के बारे में, या फोनेटिक्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज. और लैंग्वेज इसमें जो साउंड्स आ जाते हैं वो हर एक बॉक्स में पर्टिकुलरली अपने बॉक्स में जाते हैं. तो वही एक प्रोसेस कंटिन्यूसली ए की जगह जाता है, बी की जगह जाता है, सी की जगह जाता है. उस तरीके से हर एक साउंड हर एक पर्टिकुलर बॉक्स में जाती है. तो वो इंटरेक्टिंग और इंटरेक्शन एंड प्रोसेसिंग, रिसीविंग प्रोसेसिंग, ये कंटिन्यूसली हमारे माइंड में चलता रहता है. तो उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं. This requires the listener to have a high sensibility and discerning ability in pronunciation and its connection with word meanings, especially when listening to a foreign language. अब इससे क्या हो जाता है, ये एक लिसनर को उसकी जो सेंसिबिलिटी है बढ़ जाती है, और क्या है discerning ability and pronunciation. इस तरीके से वो उसको अच्छी खासी ये प्रोनाउंसिएशन या बाकी चीज़ों पे अबूर आ जाता है, उसे वर्ड मीनिंग्स का पता चल जाता है. ये तभी पॉसिबल है, इट इज़ ओनली पॉसिबल देन व्हेन यू गेट ऑल द थिंग्स, व्हेन यू
when you get all these varieties of English and about languages, and then it comes very easy to you people that you will understand all the things properly, especially जब बात किस चीज़ की हो, जब कोई फॉरेन लैंग्वेज की बात हो, जब किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना है। ये तभी मुमकिन है जब हमने फोनेटिक्स के बारे में, जब हमें नॉलेज हो, जब हमें प्रॉपरली नॉलेज हो इस लिंग्विस्टिक्स के बारे में, जब हमें नॉलेज हो इस लैंग्वेजेस, इस फोनेटिक्स के बारे में, तब हमें ये चीज़ें आ जाती हैं। It is very hard for the listener to have an immediate response to the information and catch the meaning if he/she does not possess enough linguistic and other relevant knowledge of the language. अब बड़ा मुश्किल हो जाता है किसके लिए? Very hard, एक लर्नर के लिए, क्योंकि जब तक उसे पूरा नॉलेज नहीं होगा लिंग्विस्टिक्स या रिलेवेंट नॉलेज नहीं होगा टॉपिक के बारे में, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो जल्दी रेस्पॉन्ड करे। क्योंकि जब हमें कोई फॉरेनर कोई एड्रेस पूछता है, वहाँ हमें ये हो जाता है कि हम जल्दी उसे रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वी आर अनएबल टू गेट हिम, वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हिम, सो दैट देन इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर वी पीपल टू गेट इमीडिएट और टू गिव इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द फॉरेनर। इस वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसीलिए हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए है किसके बारे में? लिंग्विस्टिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज, ये जो फोनेटिक्स है, हम फोनेटिक्स की बात कर रहे हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। द टीचर इज़, यहाँ पे कंफ्यूज, लिंग्विस्टिक्स मीन्स जो हमारा फोनेटिक्स हम जो पढ़ते हैं उसी के बारे में ये बात हो रही है। क्योंकि जब तक हमें साउंड्स के बारे में पता नहीं चलेगा, साउंड्स किस तरीके से हम, जब तक हमें बात जो कोई बोलता है उसका तरीका हमें पता नहीं चलेगा, किस अंदाज में बोलता है, तब तक हम उसे समझ नहीं पाते। तो उसी की बात होती है इधर। द टीचर इज सर्टेनली गिविंग द लर्नर्स listening practice when they are in a classroom or seminar by using English as the main classroom language. तो अब जो टीचर हैं वो अक्सर बेशतर बच्चों को लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ देता है या सेमिनार्स में उन्हें कुछ देता है ताकि उनका जो ध्यान बढ़ता रहे। और क्लासरूम में, मेन क्लासरूम, कीपिंग इन व्यू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल इन आवर कॉलेजेस क्लासरूम एक्टिविटीज लाइक नोट टेकिंग व्हाइल लिसनिंग टू लेक्चर कैन बी प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर लर्नर्स टू एनहांस देयर लिसनिंग स्किल। अब जब हमें प्रैक्टिस कंप्लीट होती है उसके बाद में, चाहे नोट बनाने की बात हो या लेक्चर के दौरान आप बात सुन रहे, जैसे आप दिस टाइम यू आर जस्ट लर्निंग दिस लेक्चर एंड और यू आर लिसनिंग टू मी and in the meanwhile you are write down some points, you are going to jot down the pointers in your rough copy, this is note taking। तो इसी तरीके से जब हम क्लासरूम में होते हैं तो वहाँ पर जब पढ़ाते हैं और बच्चे उसी दौरान नोट भी बनाया करते हैं, तो उस चीज़ को नोट टेकिंग बोलते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो, जब उन्होंने पहले ही सीखा हो ये लिसनिंग स्किल क्या है, तब जाके वो अटेंटिव होते हैं। टेकिंग नोटिस ड्यूरिंग द लेक्चर इन इंग्लिश क्लासरूम फोर्सेस स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली एंड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर। अब इंग्लिश क्लासरूम में या कोई और क्लासरूम में जब आप लेक्चर सुनते सुनते नोटिस भी बना लोगे तो वहाँ से ही पता चलता है बच्चा कितना फोकस्ड है, उसने कितना सीखा है, क्योंकि वो अटेंटिव है। और उसके लिए अटेंशन भी बड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप अगर नोटिस बना रहे हो तो मीन्स आपको ज़्यादा अटेंटिव भी रहना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो नोटिस गलत हो सकते हैं। इट कैन आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक अ बैलेंस बिटवीन रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट मटेरियल। अब यहाँ एक अच्छी बात आ गई, तो जब हमें प्रॉपर लिसनिंग होती है तो उस वजह से हम रेलेवेंट मटेरियल और इररेलेवेंट मटेरियल को कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि हमें रेलेवेंट चाहिए, जहाँ भी हो हमें रेलेवेंट की बात हम करते हैं, और चाहिए भी रेलेवेंट मटेरियल ही, इररेलेवेंट हमने नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान जब पूरा होता है, जब हम प्रॉपरली लिसनिंग करते हैं, तो हमें रेलेवेंट मटेरियल और इररेलेवेंट मटेरियल को डिफरेंशिएट करने में बड़ा अबूर होता है। द फोकस ऑन नोट टेकिंग इज ऑन अंडरस्टैंडिंग विद नॉट राइटिंग। अब नोट टेकिंग सिर्फ ये है कि आप अंडरस्टैंड करो, बल्कि लिखना नहीं होता है। मीन्स कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तब जाके आप अच्छे पॉइंट्स को लिख रहे हो। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। इसलिए नोट टेकिंग अच्छा है, बेटर है कि आप सबसे पहले जब क्लास में अटेंड हो या जो भी सुनते हो, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट ही आप क्लियर कर दो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसका मतलब आपका लेक्चर क्लियर है। स्टूडेंट्स हु हैव कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ टेकिंग नोटिस व्हाइल लिसनिंग कैन इजीली राइट डाउन द मेन आइडियाज and important details such as the time, the place, the number, the participants,
and concentrate on the main points and important information in the passage. तो जो बच्चे अब उन्हें आदत जब बन जाता है नोट टेकिंग का, तो वो ऑटोमेटिकली वो आराम से क्या करते हैं, दे कैन राइट डाउन द इम्पोर्टेंट डिटेल्स विज द प्लेस, कोई भी प्लेस के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, नंबर हो, पार्टिसिपेंट्स हो, एंड द स्टूडेंट्स विल रिमेन कंसंट्रेशन ऑन द मेन टॉपिक. तो या कोई भी पैसेज हो उसमें अच्छे से कंसंट्रेट करते रहते हैं या उनको अच्छे से कंसंट्रेशन में रहते हैं. क्यों? क्योंकि नोट टेकिंग के दौरान उनको चाहिए था कि उन्हें ये ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन जब पूरे कंसंट्रेशन में हो तब जाके अच्छे से उन्हें नोट भी बनाने आते हैं. तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया है हमें यहाँ पर. तो किस तरीके से, मतलब हम जब पैसेज या किसी की बात सुनेंगे तो हम उसमें से जो बातें होती है वो किस तरीके से हम सीखेंगे. यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को हम देख लेंगे. अ मैन गॉट इनटू अ बस. यहाँ पे मैं बोल दूं, एक आदमी जो है वो एक बस में सफ़र करता है, साथ में उसके अपोजिट साइड में एक वुमेन होती है. ये दोनों बैठे हैं और कुछ बातें करने स्टार्ट करते हैं. तो वुमेन जो है उसकी एज 35 के करीब है. तो दोनों दोनों में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है. तो इसमें सबसे पहले ये जो उसके पास है, ये मैन जो है, मेल पर्सन, ये बात करता है, क्या आपको फैमिली है? डू यू हैव अ फैमिली? Then the woman, yes, I have one son. The woman answered. ये जो औरत कहती है, मेरा एक बच्चा है. Oh really? Said the man. Does he smoke? तब ये आदमी कहता है उसे, ओह सही में, क्या आपका, ये मैडम को बोलता है, said the man, क्या वो स्मोक करता है? मैडम, no, he has never touched a cigarette. The woman replied, and she talked to him in a good polite manner. कह रही है उसको कि नहीं, उसने कभी सिगरेट टच नहीं किया है. तब जाके दैट्स गुड, द मैन कंटिन्यूड. तो इस आदमी ने क्या कहा, इसने कंटिन्यू कर दिया अपनी बात को. हाँ, बड़ा बहुत अच्छा है. आई डोंट स्मोक इधर, मैं भी नहीं पीता. तो क्या, टबैको वाज वेरी बैड फॉर वन्स हेल्थ. एंड डज योर सन ड्रिंक वाइन? तब जाके ये उससे कहता, हाँ मैं भी नहीं पीता, लेकिन ये टबैको जो है ये बड़ा बैड है इंसान के सेहत के लिए. और क्या आपका जो बच्चा है वो ड्रिंक करता है? वुमेन कह रही है, ओह नो. द वुमेन आंसर्ड एट वंस. तो औरत ने कहा, नहीं, ऐसा वो नहीं करता. ही नेवर ड्रिंक अ ड्रॉप ऑफ इट. उसने कभी एक ड्रॉप भी नहीं पिया. देन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू मैम, द मैन सेड, एंड डज ही एवर कम बैक होम लेट एट नाइट? तब जाके आदमी कहते हैं, नहीं, तो अब तो मैं बड़ा मुबारकबाद आपको कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बच्चा ये बैड हैबिट इसमें नहीं पड़ा है. क्या, और एक बैड हैबिट मीन्स क्या वो लेट आता है घर, आपके घर वो लेट आता है लेट एट नाइट? नो नेवर, हिज नेबर आंसर. तो वहाँ पे कोई और ही था, तो उसने कहा, नहीं, वो कभी लेट नहीं आया. क्यों? ही गोज टू बेड इमीडिएटली आफ्टर डिनर एवरी नाइट. जब शाम का खाना खाता है तो वो जल्दी सो जाता है. वेल, द मैन सेड, ही इज़ अ वाइज यंग मैन. हाउ ओल्ड इज़ ही? तो जब ये आदमी उसे कहता है कि हाँ वो तो बहुत अच्छा यंग मैन है, फिर दाना यंग मैन है, ये वाइज है, बहुत ठीक है, वो कितने साल का है? तब जाके ये औरत बोलती है, ही इज़ ओनली 6 months ओल्ड टुडे. ही इज़ 6 months, वो सिर्फ 6 महीने का है. द यंग वुमेन रिप्लाइड. तब जाके ये औरत उससे बोलती है, वो तो सिर्फ 6 महीने का है. वो कैसे? आप खुद देखो, ये वुमेन, यहाँ बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, और आदमी कहता है कि वो शराब पीता है. ये आपस में जब बातें करते हैं तो ये चीज़ें सुनकर, अगर हम प्रॉपरली, हमें ये एग्जांपल दी गई है कि अगर आप प्रॉपर लिसनिंग करोगे, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ कि प्रॉपर लिसनिंग जो हम पढ़ रहे हैं किस तरीके से. देखो, यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमें पता चलता है एक आदमी है, यहाँ पता चलता है एक आदमी है, एक औरत है, बस है, और ये कन्वर्सेशन में है और ये बातें करते हैं. नॉर्मल हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे ये बातें कर रहे हैं. अब लिसनिंग ये है, देखो, अगर हम प्रॉपर लिसनर्स हैं तो हम इसमें से अपनी बातें आराम से निकाल सकते हैं. हम ये कह सकते हैं, बताएं इसमें पार्टिसिपेंट कौन है, लिखा है यहाँ नीचे, मैं पहले ही बोल दूंगा.
इसमें पार्टिसिपेंट कौन है, हम ये कह सकते हैं इसमें पार्टिसिपेंट एक मैन और एक वुमेन है। इसमें ये हम कह सकते हैं दूसरा, पहला हो गया पार्टिसिपेंट, दूसरा हो गया ये बात कहाँ शुरू हो गई, ये बात बस में है, द टॉक इज गोइंग ऑन इन बस। तीसरा, इसमें मेन टॉपिक क्या है, किसके बारे में, हम ये कह सकते हैं एक बच्चे के बारे में है। कौन सा बच्चा, इस औरत का सन है, ठीक है। और ये कह सकते हैं इसमें मेन चीज़ किस बारे में कहा गया है, तो हम ये कह सकते हैं स्मोकिंग के बारे में बात हो रही है, ड्रिंक के बारे में बात हो रही है और बैड हैबिट्स के बारे में बात हो रही है। कहाँ गया बैड, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। मतलब जो यहाँ पे नहीं कहा गया वही हमने समझना है, क्योंकि देखो लिसनिंग यही है, प्रॉपर लिसनिंग। तो यहाँ अगर देखेंगे हम, इसमें पार्टिसिपेंट ये रहे, प्लेस ये बस में है, टॉपिक क्या था, एक औरत के इस बच्चे के बारे में बात थी। मतलब जो हमने देखना है। इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल क्या थी, इंपॉर्टेंट डिटेल हमारा स्मोकिंग था, ये था, और लेट नाइट था, बैड हैबिट्स था, और उसके 6 साल। मीन्स के जब हम प्रॉपर लिसनिंग करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें समझ आ जाती हैं जो हमें समझनी है। लिसन माय डियर, यहाँ हो गया, यहाँ बात आती है कैनोटेशन की, कैनोटेशन एंड डिनोटेशन। कैनोटेशन एंड डिनोटेशन, ये डिनोट क्या कर रही है पैसेज, डिनोट ये कर रही है जो आपके सामने वर्ड्स में है। इसकी कैनोटेशन क्या है, कैनोटेशन मैंने समझा दिया, इसमें कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से लिए गए हैं। एक होता है रियल मीनिंग, दूसरा होता है लिटरल मीनिंग। ओके डियर, एक है रियल मीनिंग, दूसरा है लिटरल मीनिंग। रियल में क्या है, रियल में हमारी जो कैनोटेशन आ रही है वो इसकी रियल मीनिंग है, ये एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, बस में है तो वो बातें कर रहे हैं। इसका लिटरल मीनिंग ये है जो ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली अलग अलग करके हमें बताते हैं, वो चीज़ होता है। तो यहाँ पर कैनोटेशन क्या हो रही है, यहाँ पर रियल मीनिंग क्या है इस चीज़ को, यही होता है लिसनिंग। जब हम प्रॉपरली लिसन, कोई भी लेक्चर जब हम लिसन प्रॉपरली करेंगे तो हमें पता चल जाता है। Okay, I'll continue from here in my next lecture.